آسمان پہ زندہ موجود ہیں اور وہ آئیں گے انشاءاللہ واپس. ٹھیک ہے, تو میرا عقیدہ جو ہے وہ اسلام کی بیس پہ مبنی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قیامت سے پہلے ان کا نزول ہوگا. اور جیسا کہ قادیانی ہم سے ابھی سوال وغیرہ کرتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر واپس آئیں گے تو وہ, آپ تو کہتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے, تو وہ پھر دوبارہ واپس آئیں گے تو وہ نبی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو میرا ابھی بات وغیرہ ان سے بھی ہوتی رہی ہے, تو میرا ان کو یہی جواب تھا کہ دیکھیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی نبوت ہے اور وہ وفات ان کی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, اور وہ جب واپس آئیں گے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں سے ہوں گے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور تعلیم کو لے کے آگے چلیں گے, بالکل نہ ٹھیک کہ ان کی اپنا کوئی دوبارہ بالکل وہ کوئی ٹھیک اپنی ان کے اوپر کتاب نازل ہونی ہے, بالکل اور ٹھیک نہ ہی وہ اپنا کوئی دین لے کر آئیں گے. اور جتنے بھی یہ کرسچن کمیونٹی ہے, ٹھیک ہے, یہ ساری حضرت عیسیٰ کی ماننے والی ہے, پیروکار ہے, اور انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ کے جب واپس آئیں گے تو اسلام کے اوپر انہوں نے بھی آنا ہے. جی اچھا, تو حضرت امام مہدی کے پیچھے وہ نماز ادا کریں گے, یہ بھی مسلمانوں کا عقیدہ ہے جی نا؟ ہاں, جی ہاں, بے شک. ہاں صحیح ہے. تو امام مہدی اچھا کے استاد بارے میں محترم، تھوڑا سا جی استاد محترم ایک بڑی اہم بات نقیب الحسن بھائی نے میں بتائی تھی کہ جب قادیانی کو یہ پتا چلا ہے نا کہ یہ جو ہے وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو ان کے اوپر جو ہے وہ جادو کروایا گیا، ان کے اوپر قائل علم کروایا گیا. وہ اس کے بارے میں بھی نقیب الحسن بھائی اگر بتا دیں. ہاں ہاں وہ کیا ماجرا ہے بھائی، وہ تھوڑا سا بتائیں. جی ہوا اس طرح ہے کہ جب میں مسلمان ہوا ہوں تو عرفان محمود برق صاحب آئے تھے ہمارے پاس, تو یہاں سے میں پھر انہوں نے مجھے کال کی کہ آپ آئیں, تو آپ اس چیز کو تھوڑا سا کھل کے اعلان کریں. آپ نے کسی چیز کے لیے, پیسوں کے لیے یا کسی فیم کے لیے یا اس چیز کے لیے آپ نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا. آپ کے اس انٹرویو, آپ ایک انٹرویو دیں, کھل کے اعلان کریں. آپ کے اس انٹرویو کرنے سے ہو سکتا ہے کتنے لوگ جو اس دلدل میں پھنس چکے ہوئے ہیں یا پھنسنے والے ہیں یا ہیں, وہ باہر آ سکتے ہیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا. تو میں نے یہ انٹرویو دیا ان کے ساتھ بیٹھ کے, اور یہ انٹرویو جو ہے وہ وائرل ہو گیا تھا. تو اس کے بعد کافی جگہ جا کے جو ہے نا میں نے بیان وغیرہ کیے اور لوگوں کو اس چیز کا بتایا کہ دیکھیں جی یہ چیز بالکل سراسر غلط ہے. ٹھیک ہے, یہ سراسر غلط ہے. تو جب میں نے یہ بیان وغیرہ کرنا شروع کی تو میں نے کھل کے جو جو باتیں میرے ذہن میں تھی, میں نے سیکھی, جو جو میں نے باتیں پڑھی, میں نے اس چیز کو کھل کے اقرار کیا. اور میں نے کھل کے جہاں کہیں بھی محفل ہوئی, ختم نبوت کانفرنس ہوئی, وہاں کھل کے میں نے اس چیز کا اقرار کیا کہ دیکھیے جی آپ لوگ غلط راستے میں ہیں. ٹھیک ہے, اس کو چھوڑ کے آپ صحیح راستے پہ ہیں. مطلب یہ ہے کہ میں نے مرزا قادیانی کو سیدھی سیدھی گالیاں دی. ٹھیک ہے, چاہے وہ 10 لاکھ کا مجمع تھا, چاہے وہ 50 لاکھ کا مجمع تھا. تو یہ چیز ان لوگوں سے ہضم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے پھر میرے اوپر جو ہے وہ کالا علم کروایا, اور یقین مانے کہ میرا دماغ ہی بالکل معاف ہوا ہوا تھا. میں بالکل اس چیز سے سائڈ پہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر میں نے تقریباً 6 سے 7 ماہ اپنا علاج کروایا. اس کے بعد جا کے میں ٹھیک ہوا ہوں, اور اس کے بعد ابھی میں نے دوبارہ جو ہے نا وہ کام کرنا شروع کیا اس چیز کے اوپر. اچھا تو بیسک ایک چیز اس کے بیچ میں یہ بھی آ جاتی ہے کہ میں نے اپنا حلیہ جو ہے وہ ویسے ہی رکھا ہوا ہے, میں نے چینج نہیں کیا. تو وہ حلیے کی مین بیس یہی ہے کہ دیکھیں جی جو مولوی حضرات ہمارے جتنے بھی ہیں, علماء کرام ہیں, ان سے یہ لوگ ویسے ہی جو ہے نا وہ ایک قسم کی پنجابی کہندے نے خار کھاندے نے. تو میں نے اس چیز کو اس لیے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا کیونکہ ابھی بھی آدھا خاندان میرا جو ہے وہ قادیانی ہے. الحمدللہ 5 بندے تو ہمارے گھر میں مسلمان ہو چکے ہیں اور پیچھے اور بھی ہیں. تو میں ابھی اپنا حلیہ چینج کیے بغیر ان میں جا کے بیٹھتا اٹھتا ہوں تو وہ تھوڑی سی میری بات سن لیتے ہیں نا, کہ حلیہ اپنا چینج کر لیا جائے, تو انہوں نے بات ہی نہیں سنی میری. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بہت زیادہ ہی نفرت ہے, بہت زیادہ ہی نفرت ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ بالکل سراسر غلط باتیں کرتے ہیں, سراسر غلط بات بتاتے ہیں. حالانکہ میرا ماننا یہ ہے کہ دیکھیں جی اگر کوئی غلط انسان ہے بھی صحیح, یا اسلام غلط نہیں ہے, ہاں 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. ہم لوگوں میں غلط انسان بھی ہیں, ٹھیک بھی ہیں, گناہگار بھی ہیں, نیک بھی ہیں. ہم نے اسلام کی روح کو دیکھنا ہے, ہم نے انسان کی روح کو نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے, تو میرا جب بھی کسی کے ساتھ ابھی بھی بحث ہو, بات ہو, دادا ابو ہیں, میری دادو ہیں, چاچو وغیرہ ہیں, ایک چاچو تھائی لینڈ بیٹھے ہیں, تو میری ان سب سے جب بھی بات ہوتی ہے تو پہلی ان کی بات یہ ہوتی ہے کہ یار ہم لوگ مسلمان کس چیز کے اوپر ہوں, نہ تو مسلمانوں کا ایمان ایک ہے, چوری یہ کرتے ہیں,
جھوٹ یہ بولتے ہیں, منافقت یہ کرتے ہیں, جتنے بھی الٹے کام ان کے ہیں, تو میں ان کو یہی چیز کہتا ہوں کہ دیکھیے جی اسلام تو یہ چیز نہیں کہہ رہا ہمیں کہ کرو. آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے, آپ اسلام کی جو اسٹڈی ہے آپ وہ اپنی کمپلیٹ کر کے اس چیز کے اوپر آئیں. مولویوں کے اوپر آپ نہ جائیں. آپ جو ہے وہ علماء کرام کی جو بھی ان کی ذاتی ایک صفات ہیں یا ذاتی زندگی ہے اس کے ساتھ جی اللہ سے خود ہدایت مانگی, اللہ نے مجھے ہدایت دی اور اللہ نے استقامت بھی دی کہ آج 3 سال ہو گئے میں اس چیز کے اوپر کھڑا ہوں, ساری مشکلیں پریشانیاں مصیبتیں کاٹنے کے باوجود بھی. اللہ اکبر. اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نافیہ عطا فرمائے, شریروں کے شر حاسدوں کے اثر سے بچائے. اللہ پاک قادیانیوں کے ظلم اور ستم سے آپ کو محفوظ رکھے. یہ بڑے ظالم لوگ ہیں, یہ ایسے ہی کرتی ہیں, ان کا وتیرہ یہ ہے. یہ جی بندے ہاں یہ جب بندے کے بالکل. مخالف ہو جاتے ہیں نا تو وہ پھر اس کے ساتھ اس قسم کے سلوک کرتی ہیں. یہ قادیانیوں کا پرانا طریقہ ہے واردات ہے. کوئی اور شاہ جی آپ دیکھیں نا کہ کوئی جب ایسا کام کوئی انہوں ہماری نے بہن کروائی نہیں ہے. شاہ جی جب ہماری کوئی بہن اسلام قبول کرتی ہے نا, جیسے کہ چندہ آپی ہیں اور دیگر بھی بہت ساری بہنیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے, تو ان کی کردار کشی کرتے ہیں, ان کا سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں. تو یہ کتنے یہ لوگ صفاق ہیں, اور نعرہ ان کا یہ ہے کہ جی لو فار آل ہیٹڈ فار نال. ہوں تو یہ تو میرے خیال میں تو یہ میں آپ جو کو ہے نا چھوٹی سی یہ آپ کو نعرہ بتا جاتا ہوں کہ یہ جی بھی جی تقریباً 60 ڈیٹ پہلے کی بات ہے. جب میں کھل کے سامنے آیا تو ان کی مجھے کالز آتی ہیں کہ بھائی ہم نے آپ کی جو ہے نا وہ گندی ویڈیو جو ہے وہ آپ کی بنا کے رکھی ہوئی ہیں, تو اگر آپ اس چیز سے کھل کے سامنے آپ آ گئے اور آپ جو ہے نا وہ بیان وغیرہ مسجدوں میں جا کے کر رہے ہیں جگہ جگہ, کیونکہ کوٹ عبد المالک, لاہور, فیصل آباد, مطلب آدھے پاکستان میں نے جا کے بیان دیے ان چیز کے اوپر, تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کی گندی ویڈیو جو ہے وہ ریلیز کر دیں گے سوشل میڈیا کے اوپر, آپ ہمارے بارے میں بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں, آپ نے چھوڑ دیے تو آپ اس چیز کو اب بس کریں, بند کریں, آپ ہماری تشہیر کیوں کر رہے ہیں کہ ہم لوگ غلط ہیں. نہیں, گندی شاہ جی میرے وہی خیال کریں میں گے, نا گندی شاہ ویڈیو جی تو میرے وہی. خیال میں شاہ جی میرے خیال میں نا ان کے ساتھ یہ ہوا ہوگا کہ یہ جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ یہ پھر مسلمان جو لڑکے ہوتے ہیں نا ان کے پیچھے بھی یہ قادیانی لڑکیاں لگاتی ہیں, تو اس طرح کا کوئی معاملہ مجھے لگ رہا ہے نقیب بھائی کے ساتھ بھی ہوا ہوگا. وہی نا کہ پہلے تم نے اپنی لڑکیاں خود ہی پیش کی, خود اس کی پھر ویڈیو بناتے ہیں, بعد میں وہ پاس رکھتے ہیں. ہاں جی, تو لڑکیاں تو تمہاری ہی تھیں نا جن کے ساتھ کوئی نقیب بھائی نے کوئی غلط کاری کی ہوگی, تو اب روتے کیوں کرنیاں جو نہیں جی, ابھی میری مبشر بھائی, ابھی سین یہ ہے کہ آئی ٹی کا تھوڑا سا میں بھی سمجھتا ہوں ابھی کا جو دور چل رہا ہے یہ بہت زیادہ فاسٹ چل رہا ہے. اے آئی ٹول ایسی ایک ٹول ہے جس سے آپ کی ایک تصویر لے کے آپ کی پوری ویڈیو کریٹ کی جا سکتی ہے. اگر آپ نے کچھ ایسا نہیں بھی کیا ہوا تو آپ کا سارے معاملات جو ہیں وہ اے ہاں آئی ٹول وہ سے آج سب کل کچھ تو جنریٹ اور بہت کچھ کریٹ ہو کیا گیا جا ہے, وہ چہرہ کسی کا لگا سکتا ہے. دو, جی ہاں اصل چیز کوئی اور ہوتی ہے, وہ کوئی مشکل نہیں ہے, جی کوئی مشکل. جی اچھا, ہاں. اسلام اللہ بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی. جی حضور, میرے ایک دو سوال ہیں. ایک تو ابھی فرمایا نا انہوں نے کہ وہ گندی ویڈیو کے متعلق, اس کے لیے عامر منیر, سابق قادیانی عامر منیر صاحب نے بڑا واضح طور پہ نا ایک چینل کے اوپر بیٹھ کر کے ان کو گندی فلموں کے متعلق اس نے قرآن ہاتھ میں پکڑ کر کے ساری چیزیں بتا دی تھی کہ میں خود بھی جب قادیانی تھا تب میں اس وقت ایسے ہی کیا کرتا تھا. اب تم قرآن اسی طرح اٹھا کر اپنی بات نہ کرو, مرزا بشیر الدین کی ہی بیٹی کی بات کر لو, اس کے اوپر تو یہ وہ بھاگ گیا تھا. کالو اس کا جو ہے نا جو بڑا تبرے کرتا ہے, بہت بکواسات کرتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر, وہ بھاگ گیا تھا پھر عمران کالو اس وقت کہ جی میں کیوں اٹھاؤں. اچھا, یہ ان چیزوں کے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری چیز, میں نا یہ اپنے بھائی جو ایکس قادیانی ہے, نو مسلم ابھی ہیں, تو یہ وہ ہتھیار ہم مطلب مسلمان ہونے کے بعد یہ وہ ہیں کو جو مرزا قادیانی کہتا نا میری جماعت کے جو لوگ ہیں وہ سابقہ کہنا ساتھ میں بھول گیا کہ جیسے ہی وہ مجھے چھوڑیں گے نا تو تب وہ دلائل اور میرے نشانوں کی روشنی میں نا مجھے ذلیل کریں گے, سب کا منہ بند کریں گے. تو واقعتاً جو قادیانی حضرات ہمارے جو
कादियानी हजरात हैं, बाबर भाई हैं, अभी नाम जो बर्क साहब का लिया वो हैं, और बहुत सारे कादियानी हजरात हैं जो इनको छोड़ के आए हैं और वो ठीक इनकी ठुकाई करते हैं। अच्छा, ऐसे अब ही है मेरा जी, सवाल बिल्कुल। इससे एक ये है कि ये अच्छा। बता दें, फरमाएं कि आपने जब कादियानियत छोड़ी उसके बाद जी, जी। कादियानी हजरात आपसे ये सवाल करते होंगे कि किस मसलक में गए हो, किस फिरके में, मसलक का जी। लफ्ज नहीं इस्तेमाल करेंगे, किस फिरके में गए हो। अच्छा, और मुसलमानों की तरफ से आपको किसी ने सवाल ये किया कि आप किस फिरके में गए हो? जी हाँ, ये काफी ज्यादा सीन हुआ है। ये चीज बड़ी ये अहम है कि किसी मुसलमान जी ने हाँ। आपसे नहीं पूछा हो कि आप किस फिरके में गए, नहीं, ये कादियानी ने आपसे जरूर पूछा होगा। बहुत शुक्रिया ऐसे ही कि है। आपने जवाब दिया, अल्लाह ताला आपको खैर दे। जी, जी। हाँ ये नहीं, अभी बात भी इस तरह अभी भी के हमने इनसे अभी तक नहीं पूछा। ये हमारी आदत ही नहीं, कोई मुसलमान के पूछते ही नहीं है। यहाँ पर थोड़ा बिल्कुल। सा नकीब भाई की तरफ आने से पहले मैं ऐलान कर दूं कि 27 रोज़ा अरबी ग्रामर कोर्स शुरू हो गए। आज पहली क्लास थी और ये इसी के अंदर, इसी जो प्रोग्राम अभी जारी है इसके अंदर ही हमने पहली क्लास पढ़ा दी है। तो ये जिसने दाखला लेना हो, ये तो आज चलो चूंकि पहली क्लास थी तो वो हमने ऑनलाइन कर दी, तो इंशाल्लाह बकाया क्लासेस सेपरेट होंगी। तो आप हजरात से गुजारिश है जिसने दाखला लेना हो फौरी तौर पे राब्ता कर ले, फौरी तौर पे राब्ता करें। और इसकी $25 हमने फीस रखी है पूरे कोर्स की। तो वो फिर सेपरेट हम इंशाल्लाह ताला आपको पढ़ाएंगे भी और सबक भी सुनेंगे, और कोई आपने सवाल करना हुआ तो उसका जवाब भी देंगे। और ये सारी सहूलतें उसी को मुयसर होंगी जिसका दाखला होगा। बगैर दाखले के ये सहूलत फिर मुश्किल हो जाएगी। अगली बात यह है कि ये ऐलान सुन लें जामिया खत्म नबूवत का, उसके बाद हम वापस आते हैं। क्या इन फितनों को देखकर आपका दिल नहीं टूटता? क्या आप दुख नहीं महसूस करते कि उम्मते मुसलमान, उम्मते मुहम्मदिया कितनी दूर जा रही है और ये फितने सर उठा रहे हैं और इन फितनों के अंदर ये उम्मते मुसलमान गिर रही है। हम एक जामिया बना रहे हैं, जामिया खत्म नबूवत, इसके अंदर तकाबले अदयान और मज़ाहब की तालीम दी जाएगी। नो मुस्लिमीन को दावत दी जाएगी कि वो आके हमारे पास पढ़ें, जहाँ पर लड़कों को भी तालीम दी जाएगी और लड़कियों को भी तालीम दी जाएगी। ऐसे उलमा और स्कॉलर तैयार किए जाएंगे कि जो गैर मुसलमों के उठाए गए इतराजात के जवाब दे सकेंगे। जामिया खत्म नबूवत की अराजी खरीदनी है और 2 कनाल जगह जनाब आप की मुंतजिर है और मुखय्यर हजरात की मुंतजिर है कि मुखय्यर हजरात तवज्जो फरमाएं और कम से कम ये जगह सबसे पहले हम खरीद लें, इसके बाद उसकी तमीरात के मराहल होंगे। तो अभी ये ज़कात निकालने के अयाम है, रजब, शबान और रमजान। तो दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी ज़कातें कम से कम जो है ये जामिया खत्म नबूवत को दें। ये तो ज़कात तो आपके ऊपर फर्ज है, आपने निकालनी ही निकालनी है। अपने रिज़्क़े हलाल में से भी आप निकाल के ये जामिया की जो अराजी हमने खरीदने की कोशिश की है और ऐलान किया है, इसके अंदर हमारी मदद करें। अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी ने अपना 10 नकाती एजेंडा पेश किया था, जिसके अंदर सबसे पहले ही उन्होंने चीज ये रखी कि ऐसे अजीमुशान मदारस खोलो कि जो उम्मत मुसलमान के अकायद और नजरियात की हिफाजत कर सकें। तो अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी के इस ख्वाब को आप लोगों ने पूरा करना है और जामिया खत्म नबूवत बनना चाहिए। और इसके बनाने के अंदर मुखय्यर हज़रात से मैं अपील करता हूँ कि इसकी तरफ तवज्जो फरमाएं और कम से कम ये जगह पहले ले लें, इसके बाद तमीरात की कंपेन हम चलाएंगे। जी ये मैसेज आपने सुन लिया। ये गिफ्टिंग करने वाले हमारे प्यारे दोस्त अब्दुल्ला राना, शुक्रिया भाई आपका। अच्छा, तो ये देखिए अभी जामिया अगर बना होता तो यकीन जाने मैं ये पहला स्टूडेंट नकीब को रखता, और नकीब चूंकि अभी नए मुसलमान हुए हैं, कादियानियत को इन्होंने छोड़ा है, तो इनको हम अपने इदारे में बुलाते और इनको पढ़ाते, इनको कोई दीन इस्लाम का सिखाते। इनकी जो बहनें हैं या मतलब कोई भी लड़कियां और लड़कों दोनों के लिए इकट्ठा कर रहे हैं ना, तो ये तो इदारा ही जो हम बना रहे हैं जामिया खत्म नबूवत, ये इन 9 मुस्लिमीन के लिए ही तो बना रहे हैं।
कि ताकि इनको यार इनको हम जब ये मुसलमान होते हैं तो नए नए दीन इस्लाम को ज्वाइन करते हैं, तो भाई उनको कम अज कम उनकी कोई तालीम तरबियत तो करनी है कि नहीं, उनको छोड़ तो नहीं देना आपने कि बिल्कुल चलो जी कलमा पढ़ा दिया, मिर्दे पे लाना डलवा दिया, अब छोड़ दिया, आजाद कर दिया, जो मर्जी करो जी। तो बड़े मसाइल इनके लिए होते हैं, बड़े मसाइल होते हैं। तो ये जामिया बनाने के लिए भाई अराजी खरीदनी है, 2 कनाल जगह खरीदनी है, तो मुखय्यर ज़रात खसूसी तौर पे इसकी तरफ तवज्जो करें यार। अभी ये 2-4 दिन तक इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ आने लगा है, और रमज़ान शरीफ में तो सदका खिरात करने के फ़ज़ाइल बरक़ात ही बेशुमार है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त तामुन फरमाएं ताकि ये जगह हम अल्लाह करे कि ईद तक हमारे पैसे इकट्ठे हो जाएं और हम जगह खरीद सकें। तो मैं खसूसी तौर पे अपील करता हूँ जी। नकीब भाई आपको जो सवाल थे उनके जवाबात आप दें जी। जी लास्ट क्वेश्चन का तो मैंने जवाब दे दिया था, और कौन सा रह गया था, याद करा दे थोड़ा सा। ये इस्लामुल्लाह भाई ने कुछ पूछा है, क्या पूछा था इस्लामुल्लाह भाई? मुख्तसर जरा आप ना जब आप रेस लेते हैं ना, तो रेस लेते लेते आधा घंटा लगा देते हैं। मुख्तसर सवाल बताएं। मैं माफी चाहता हूं इस बात की कि आपका मैंने वक्त ज्यादा लिया, चूंकि बहुत आप लोगों का वक्त कीमती होता है। ये बड़ा अहम सवाल था कि जब हम लोग मुसलमान, हम तो है ना, आप हमारे जब भाई बनते हैं, मुसलमान हो जाते हैं, तो आपके नजदीक मुसलमान भाई आपसे ज्यादा ये क्वेश्चन करते हैं कि किस फिरके में जाना। हाँ बात सही है, सवाल आ गया, सवाल समझ आ गया। जी ये सवाल ये सवाल समझ आ गया। आपसे आप ये बार पूछेंगे कि आप कौन से फिरके में गए हो, ये बड़ी अहम चीज है। इसके ऊपर आप बराए मेहरबानी फरमा दीजिए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया माइक फ्री। जी बिल्कुल। इस तरह के बिल्कुल कादियानी दादा सवाल मेरे से पूछते हैं कि भाई अब आप किस मसलक में गए हैं, तो मैं तो उनको यही कहता हूँ कि भाई जिस मसलक से आपकी जमात निकल के अलहदा हुई है, मैं उसी मसलक में वापस गया। जवाब है बेहतरीन। मसलक नहीं, फिर फिरका ही बोली दे, फिर बोली दे फिरका ही, क्योंकि वो सवाल करते फिरके किससे, कहो कि जिस फिरके से निकल के जनाब मिर्जा कादियानी आया था ना, तो उसी फिरके में मैं गया हूँ। ये तरीका का ठीक है, ये जवाब बेहतरीन। अच्छा जी बनता ही यही है जी। और हमारे टिकटॉक के ऊपर भी काफी दोस्त आ गए हैं। कोई बात करना चाहें तो भाई माइक फ्री है, तो बात कर सकते हैं। उस्मान नहीं शायद बस इनसे यही कहेंगे कि ये खत्म नबूवत के काम के साथ जुड़ के रहें और ये हमारे साथ टाइम दिया करें, और बाकी भी जो खत्म नबूवत का काम कर रही है टीमें, उनके साथ भी बैठा करें, लेकिन अपना मकसद बना लें अब अपनी जिंदगी का खत्म नबूवत पे काम करना। जी बिल्कुल लगा हूँ करने, क्योंकि पहली बेसिक चीज जो है वो फैमिली है, ठीक है। तो उसके ऊपर पहले मेहनत चल रही है कि वो सबसे पहले वो हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह जब यहाँ से खत्म होगा सारे मामला, तो फिर हम बाहर निकलेंगे और बाहर निकल के भी लोगों को दावत देंगे, क्योंकि अभी अगर मैं घर वालों को छोड़ के बाहर निकलता हूँ तो वो थोड़ा सा मायूस है। अच्छा एक काम और आपने करना है कि इस फितने से भी आपने बचना है, ठीक है? जी हाँ जी हाँ। ये मिर्जा जूनियर जेलमी का जो फितना है ना, इस फितने से भी आपने बचना है। तो मिर्जा जूनियर जेलमी के कुछ वीडियोस में आपको सुनाता हूँ, तो आप तवज्जो से ये जरा सुनिएगा। ये देखें जी, ये देखें इस कमीने इंसान के किस किस्म के अकायद और नजरियात हैं। आप जरा इसको तवज्जो करिएगा। कहता है जी कादियानियों का तर्जुमा कुरान बिल्कुल ठीक है, मुसलमानों के तर्जुमा कुरान बिल्कुल गलत है। ये असल में कादियानियों का पिट्ठू है, कादियानियत की तालीम लोगों को दे रहे हैं। कादियानी कुरान बांट रहे हैं तर्जमे वाला, इसलिए कुरान तर्जमे से ना पढ़े। एगड़ी इस्लाम की खिदमत है। कुरान का तर्जमा अगर कोई गलत करता है, वैसे तो मैं इस बात के साथ एग्री नहीं करता हूँ, कुरान के तर्जमे में कोई फर्क डाल ही नहीं सकता। ये कहेंगे कि कुरान तर्जमे से ही पढ़ना छोड़ दें, कि बड़ा रोंद मार दो यारा, पेट से आप आके बैठ गए हो। ये आपकी बेसिक नीड है कुरान तर्जमे से पढ़ना,
तो ये 2 नंबरी छोड़ दें। और फिर मैंने देखें बारहा ये बात की है, आप उनसे भी जाके कुरान का तर्जमा करवाएं ना, अगर उनको उर्दू या इंग्लिश आती हो, वो वही तर्जमा करेंगे जो कुरान की अरबी लिंग्विस्टिक का बनता है। तर्जमे में कौन कैसे बदल सकता है, मुझे बताएं। तो ये किस तरह कह सकते हैं आप कि तर्जमे बदल गए? 8 ट्रांसलेशंस ऑफ कुरान और उलमा का धोखा, ये बेसिकली रंग में भांग डाल रहे हैं। ये चाहते ही नहीं आप कुरान पढ़े, और ये कुरान के दुश्मन है कि जी वो जी तर्जमे कौन सा तर्जमा बदला है? इवन ये जो कादियानियों के बारे में भी कर रहे हैं ना, आपको स्पेसिफिकली कोई पोर्शन लेके आए कि जिसके अंदर उन्होंने तर्जमे में फर्क डाल दिया हो। और माजरत के साथ एक ही बड़ा हमारा उनसे इख्तलाफ है ना खत्म नबूवत पे, उसमें उन्होंने तर्जमा ठीक किया हुआ है, आपके उलमा ने गलत किया हुआ है। जी सुन लीजिए आपने, वो कहता है कादियानियों के तर्जुमा कुरान ठीक है, मुसलमान उलमा के तर्जुमा कुरान गलत है। तो ये बंदा जो है ना, इस बंदे से भी बचना है। ये ना हो कि आसमान से गिरे खजूर में अटके वाला साहब हो जाए, क्योंकि अगर कोई कादियानी एक्स कादियानी मिर्जा जूनियर जेलमी के ऊपर ईमान लेके आया तो वो ही हो गया। ये बंदा कादियानी है पीछे पर्दा। तो ये वो ही अकायद और नजरियात रखता है जो मिर्जे कादियानी के अकायद और नजरियात थे, और ये कादियानियों का सपोर्टर है। ठीक है, अभी वो दोस्त कह रहे थे कि नहीं जी वो इस मिर्जा जूनियर जेलमी ने कहा ही नहीं है कि ये हनफियों के अंदर से निकल के आए। ये देखें उसकी ये स्टेटमेंट सुन लें। कितनी कमजोर ग्राउंड के ऊपर ये कादियानी फिरका खड़ा हुआ है। फिरका मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि ये सुन्नियों से निकला है, और उससे भी बढ़कर हमारे हनफी देवबंदी और हनफी बरेलवी भाइयों में से निकला हुआ है। हाँ। ठीक हो गया, हनफी सुन्नी बरेलवी, हनफी सुन्नी देवबंदी बरेलवी भाइयों के अंदर से ये निकला हुआ है। सुन लिया आपने? तो ये अभी जो दलाइल दिए थे इस वजह से दिए थे कि वो बंदा जो है ना इस तरफ आ ही नहीं रहा था। अब ये देखें, इसका जरा तस्वीर का एक और रुख देखें, इतना गंदा इंसान है, इसके अकायद और नजरियात देखें कितने गंदे गंदे अकायद हैं। कहता है जी अगर कोई औरत यानी मर्जैन है, वो चाहती है कि उसको 4 शोहर मिले तो अल्लाह ताला उसको 4 शोहर दे देगा। ये सुने। अच्छा, ये मर्दों के लिए जन्नत में 70 उड़े हैं। मौलाना तारिक जमील साहब भी बड़े जनाब ये ले लेके सुनाते हैं, और बाद लोग इस पर एतराज करते हैं, बाद लोग खुश होते हैं। अच्छा, ये अब औरतों को क्या मिलेगा ये जन्नत में? देखिए जी, पहली बात यह है कि कुरान और सुन्नत इस मसले में खामोश है। कि औरतों के मसले में ये औरतें भी आजाद कर कहती हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं। जी जी, औरतों को ये कहें कि हाँ, मैं जवाब देता हूँ। औरतों से ये कहें कि इंशाल्लाह आपके लिए हर वो चीज होगी जो आप ख्वाहिश करेंगे। जो कुरान हकीम में आया कि जन्नती के लिए हर वो शय है जो वो ख्वाहिश करेगा। अगर किसी औरत के लिए, या वो जवाब है जो गमदी साहब ने भी दिया, मैं देता हूँ जवाब। अगर किसी औरत की ये ख्वाहिश है कि यार ये टिकटॉक पर कॉलर कौन उठाया है? सईद साहब कौन है? चले गए हैं। ये किसने उठाया था इनको? हेलो, मैंने रिक्वेस्ट डाली थी तो वो आ गया। वही तो बात है ना। तो वो देखे ना, वो कादियानी था, वो शरारत करने आया था। आपने अननोन को क्यों रिक्वेस्ट डाली? है तो कादियानी था, वो पहले आता कोई नहीं, नीचे टिप टिप कर रहा है। यही तो बात है, ना ही ना करें। मैं अपनी ब्राड को बड़ा मतलब सेव करना चाह रहा हूं, तो ये नहीं करना। आगे सुने जी इसकी जरा। उसके लिए एक से ज्यादा मर्द हो, ठीक है, या वो एक से ज्यादा उसको भी हूरे मिले, तो अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। हाँ, वो इस तरह कर सकता है कि उसको जन्नत में मर्द बना दे और उसको हूरे दे दे। अल्लाह ताला हर चीज के ऊपर कादिर है ना। बाकी जो अल्लाह ताला के अपना फिनोमेना है, उसके अंदर तो उसके ऊपर कोई कदर नहीं लगाई जा सकती ना। कि अगर आप कहेंगे जी अल्लाह ताला ने जन्नत में भी 2 आंखें, 1 नाक, 2 कान और होंठ और ये चीजें रखी हुई हैं, मैं चाहता हूं जी मेरी जन्नत के अंदर जो है ना वो बब्बर शेर वाली शक्ल बन जाए, तो कुरान और हदीस में साबित करे, तो मैं कहूंगा ऐसा हो सकता है। अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश पूरी कर दे कि आपको अगर बब्बर शेर बनने में ज्यादा मजा आता है तो आपको बब्बर शेर बना देगा अल्लाह ताला। मैं इसीलिए कहता हूं मुझे। अब ये आगे इसका देखिए, ये सेक्स की तालीम सरे आम दे रहा है और कह रहा है तौहीद के बाद जो बेहतरीन चीज है वो सेक्स है। सुनिएगा जरा। इस्लाम की जो सबसे पसंदीदा चीज है ना, अकीदा तौहीद के बाद अकीदा तौहीद सबसे पसंदीदा। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। मैं शायद कोई ऐसी बातें करूं जो भी मजहबी लोगों को बुरी भी लगे। देखिए, इस्लाम ये जो कहते हैं ना जी सेक्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, सर इस्लाम में तो सेक्स की एजुकेशन है।
मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें। हमारे 14-15 साल के बच्चे क्या सेक्स के मामले में एजुकेटेड होते हैं? यानी बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फौरन एजुकेट करें। होता क्या है, ये बच्चियां स्कूलों में पढ़ती हैं, स्कूल में पीरियड्स आ जाते हैं तो बच्ची तो परेशान हो जाती है ना, वो पूरे कपड़े भर जाते हैं खून से। बच्चों के बैग के अंदर आप रुमाल या इस तरीके से, अब तो खैर लेटेस्ट मामलात हो गए, पैड्स आ गए, और उनके पैड्स, उनके 1 या 2 पैड रख के बच्चियों के, और उनको पहले एजुकेट कर दें कि अगर ऐसा मामला हो तो परेशान नहीं होना। चारी बच्चियों के ऊपर क्या गुजरती है कि जब उनके साथ पहली दफा हुआ था तो कितना तमाशा लगा था, और फिर वो अपनी सहेलियों का भी सुनाएंगी, फलानी के साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और ऐसा तमाशा खड़ा हो जाता है। और लड़के भी इसी तरीके, मेरी माशाल्लाह बड़ी बच्ची ऑलमोस्ट 12 साल 13 साल की, तो मेरी वाइफ ने उसको इस हवाले से एजुकेट, क्योंकि वो मतलब वो आके ज़ाहिर मुझसे तो नहीं डिस्कस करती, तो उसने अपनी मामा से डिस्कस किया कि आज इस तरह एक बच्ची के साथ हो गया, आज इसके साथ हो गया, तो वो बच्ची फिर पूरे पूरे दिन रोती रहती हैं, उनको तो पता ही नहीं कि यही मामलात हो गए। तो वो फिर उसने उसको एजुकेट, सारा कुछ सिलसिला। फिर मिसों ने भी कहा जी आप मतलब अंडरवेयर यूज करें। सेक्स की तालीम इस एज के बाद तो देनी है ना आपने। मैंने एक प्लान बनाया हुआ है, अब अल्लाह करे वो कभी दिन आए। मैंने एक प्लान किया था कि मैं सिर्फ 10 साल से जो 15 साल के बच्चे हैं ना, उन बच्चों के लिए एक नशिस्त रिकॉर्ड कराऊं, ताकि जो हमारे बच्चे अब जवान हो रहे हैं, खुद शर्मा रहे हैं ना, तो वो वीडियो दिखा दें कि बेटा ये देख। ये वाली एजुकेशन जरूर दे दी जाए। यानी मुझे अपनी बालिग होने की उम्र भी याद है, 26 मई 1992। आप उंगली भी लगाए ना ऐसे उठ जाता है, ठीक है ना। हमने जरा सी उंगली कराई ना ऐसे खड़ा हो गया। अब वो जब खड़ा हुआ है जनाब परेशान है, खलो क्यों गया है, बाओ इनू बाओ, ये नहीं सर पहनदा हुन, ये नहीं सर पहनदा, ये खलो गई, ये जेहड़ी शै है वो है ऑरल सेक्स का इशू, जिसकी मुख्तलिफ शक्लें जो है वो मुआशरे के अंदर राइज हैं। भाइयों, इस्लाम में एज सच ऑरल सेक्स की कोई मुमानियत नहीं आई। तो ये तस्वीर का थोड़ा सा रुख दिखाना था आपको। ये है कि इस बंदे से भी बचना है नकीब भाई, ये ना हो कि ये जी जरूर, हाँ बिल्कुल। ये बहुत बड़ा ये समझ ले कि ये कादियानी है, और कादियानी अकायद का ये पैरोकार है, और छुपे हुए तौर पर ये ना कादियानियत की तालीम दे रहा है जी। जी सुनती है आवाम इसको। मेरा बड़ा भाई था जब कदियानी, अभी पीछे 2 माह हुए हैं उसको छोड़े हुए, वो भी इसी को सुनता था बहुत ज्यादा। तो हाँ। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई इसको छोड़ो, तुम अपनी स्टडी जो है वो अपनी, जो तुम्हारे पास बुक्स पढ़ी हुई है तुम उसको पढ़ो। मैंने कहा ये फारिग है बंदा, उसको सुनोगे तो मैंने कहा तुम कहोगे यही ठीक है। तो जब वो कादियानी था तो वो सुनता था। यही है कि कादियानी ही इसको प्रमोट कर रहे हैं, ये इसके फॉलोअर हैं ही कादियानी या राफसी लोग हैं। तो आवाज कट रही है आपकी। हाँ, अच्छा मेरी आवाज कट रही है काशिफ? नहीं, हमारे पास तो ठीक आ रही है सर। अच्छा, वो नकीब भाई का फिर कोई मसला होगा। काशिफ भाई मौजूद है? अच्छा जी, ये अमजद महमूद साहब आए हैं, ये कादियानी। अमजद साहब आए हैं जी, आए जी अमजद साहब। अमजद साहब ये वो ही है ना जो कल भी आए थे, जिनसे बात हो रही थी? जी शाह जी, हाँ हाँ अमजद साहब आप तो बड़े अच्छे बंदे हैं, तो आप चले गए थे, आए कॉल पे हैं, इनको कॉल पे लें भाई। शाह जी मैंने इनविटेशन भेजी है। अच्छा अमजद साहब, 1-1 मिनट का टाइम रख के आपसे बात कर लेते हैं, आप तशरीफ ले आए ऊपर। जी जी अमजद साहब आइए, तशरीफ लाइए। आपकी ब्राडो पे तो गालियाँ पड़ती हैं, या नीचे उतार देते हैं या म्यूट कर देते हैं। आप तशरीफ लाएं, 1-1 मिनट का टाइम रख के आपसे बात कर लेते हैं, आ जाएं आप। हाँ बिल्कुल, 1 मिनट आप बात करें, 1 मिनट हम बात करते, तो ऐसे बात करते हैं। कहते हैं पहले मौजू जी, मौजू आप बता दें जनाब, आएंगे तो सामने ना, ऐसे टिप टिप से तो कुछ नहीं ना यार। मैं कमेंट में हाइड ना कर दिया ते ताकि कमेंट ना रवे बांस से ना बजे बांस नहीं। शाह जी फिर मर्जियां दा पता ही नहीं लगना थले आए दे ने। कोई गल नहीं, कोई गल। आ जाओ यार, तुसी इंज करो, कमेंट खेड़ना छड्डो, काल पाओ ते चक्को ही भाई, इन्हां नूं काल ते चक्को भाई। इधर आपके एक्स कादियानी बैठे हुए हैं, तो आप कादियानी हैं तो आए बात करें हमसे। अमजद साहब शाह जी उन्हें अपनी आईडी हाइड कर दी है ना, सिया दी आईडी हाइड दौड़ गए, दौड़ जी इन्ने कोई इल्मी किताबी हुंदे ने। आने बस इन्ना कोई एनजी हुंदा।
नहीं वो इल्मी किताबी नहीं मुस्लिम अहमदी है ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਾਲ Dialogue. ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ Dialogue. डायलॉग ਅੱਛਾ ਇਧਰ ਆਸਫ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ YouTube ਤੇ ਕਾਸ਼ਫ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਧਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਿਓ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਗੱਲ ਟੋਰੋ ਕਮੈਂਟ ਖੋਲ ਦਿਓ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਖੋਲ ਕੇ ਜਰਾ ਮਰਦਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਚੁੱਕਣਾ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम ਸਾਮੋਲਾ ਭਾਈ ਕੋ ਬੋਲ जी वालेकुम सलाम आमिर भाई क्या हाल है खैरियत है अल्लाह का शुक्र समान भाई अबू हसन भाई बाबा जी नौमी भाई सब ठीक ठाक हजूर आला शान जी अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ भाई इसको ले ऊपर है और है ना इससे मुसलमात जो है ना इससे कहता है जी मुसलमात बताएंगे तो इसको ऊपर लें इससे पूछें कि मुसलमात की तारीफ क्या है और फिर इसको बताते हैं मुसलमात अबू हसन भाई आवाज कैसी आमिर भी बेहतरीन जी अच्छा अमजद साहब आ गए अच्छा बात सुनो भाई जरा मैं बात करांगा अमजद साहब ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਵਾਂ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਈ ਫਿਰ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह माइक ते पटो वसलाम मुफ्ती साहब देखें पहले तो सबसे पहली बात तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ ये बीच में आपकी शागिर्द नहीं नहीं बोली मैं आपके लिए रुक गया हूँ ना देखे ना यार देखे कैमरा भी ऑन कर लिए जी अच्छा अमजद तो साहब सबसे पहले तो आप अपना दावा पेश करें तो आप और YouTube पे आ वफात सकते मसीह पे हैं बात करनी है आप अगर आपके पास वक्त हो तो YouTube नहीं जी पे नहीं आ मैं जाओ। नहीं आ सकता यूट्यूब पे नहीं यार आ जाओ यार उथे उथे ना वो बाबा टीम बैठी नहीं जी नहीं मैं कौन आंदा पिया यूट्यूब पे अच्छा इधर ही बैठना शाह जी ये गिनती के 4 बंदे होते हैं तो ਤੁਹਾਡੇ चल ਕੋਲ यार नहीं चार नहीं बाबा ही थे शाह जी मैं यहीं पे रिकॉर्डिंग लगा देता हूँ आप करें बात रिकॉर्डिंग वावा बंदे Recording हो ਕਿਹੜੇ गई है। वावा बंदे हैं गिनती के 4 बंदे होते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नहीं यूट्यूब पे नहीं बाबा ने अच्छा बात सुने मौजू बताए आप यूट्यूब पे यूट्यूब पे गिनती यूट्यूब मन पसंद का मौजू YouTube पे गिनती के 4 बंदे होते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਵਾ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ होते हैं मौजू बताए ਤੁਹਾਡੇ घर के बंदे होते हैं मन पसंद मौजू बताएं जी वफात मसीह पे मुझे बात मसीह करनी पे लो जी सारे लोगों ने सुन लिया वफात मसीह जरा तुसी माइक पट के दसो YouTube वाले हो चको जी ऐना नहीं जी उस्ताद जी सुन ले दावा पेश कर दें लिखकर कौन सा दिया इन्होंने भाई वफात मसीह वफात मसीह मसीह उस्ताद जी सुन लिया वफात हमने मसीह तो सुन लिया टिकटॉक वाले उधर रिपीट कर दिया जे मौजू की है वफात मसीह वफात मसीह सारे दसो जरा एक करी गल पक्की हो जाए जरा वफात मसीह उस्ताद मोहतरम वफात मसीह मौजू सिलेक्ट हो गया जे सारे चुप करके बैठे ने की चक्कर यार ढिले बंदे मेरे मत्थे ना लग्या करो समझ आई कि नहीं ते जिन्ने जेड़ा ढिला होवे खुद ही काल तो थल्ले उतर जाए वफात मसीह जी वफात मसीह आप भी इतने टिल्ले हो ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾगिर्द भी उतने ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾगिर्द भी उतने टिल्ले हैं जितने ਤੁਸੀਂ टिल्ले हो है चलो ठीक अच्छा जी लो जी वफात मसीह पर बात होगी वैसे ना अच्छा बात तो सुन लें अच्छा जी एक मिनट आप बात करेंगे 1 मिनट में ठीक है अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती मुबशर शाह जी क्या हाल है वालेकुम जी ठीक है 1 मिनट जरा थोड़ा सा मुझे मैनेजमेंट कर लेने दें ये कॉलर कौन उठा रहा है अभी गुफ्तगू शुरू हो गया अभी नए कॉलर ना उठाएं जी ठीक है शाह जी यार गल तुझे कोई गल मैं बंदे ने नस जाना है भाई नहीं इस्लामुल्लाह भाई नहीं ये ब्रॉड बंद हो जाएगी इस तरह की कर रहे हैं ना कुछ नहीं भाई कुछ नहीं करना लो जी 1 मिनट आप बात करेंगे 1 मिनट में कबूल है आपको तो ले दौड़ गया बंदा दौड़ गया शाह जी ने वापस आ लित्तर ले आई सुकून से बात करने दी लित्तर जड़ा नुक्कर च पिया है ना ले आई जरा नोक आला लित्तर चुंझ आला ਤੇ ਪੈਜਾ ਲੰਮੇ ਹੋਏ ਵੇਲੇ ਮਰਜ਼ਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿੱਤਰ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ
मुफ्ती साहब ये बंदे 4-5 बंदे ना लेना कोई हिसाब भाई मौजू तुम्हारी मर्जी का, मैं कह रहा हूँ मैं मुनाजरा करता हूँ, खुद दौड़ गया बंदा, दे लो। काजी एक मिनट डिस्क्लेमर चला दें प्लीज आप जरा। डिस्क्लेमर की होया की सी वैसे, चलो बात चुप। इस्लामुल्लाह भाई नु मैं कान पढ़ाना वा जरा प्राइवेट फिलहाल डिस्क्लेमर चला दें। एक मिनट। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख्यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख्यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फर्द की आरा और मौक़िफ़ के जिम्मेदार नहीं। अच्छा चलो जी यार, कादियानी अगर सुन रहे हैं आए यार, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई गाली नहीं, कोई कुछ नहीं होएगा। मौजू भी तुहाडा, शरायत भी तुहाडियां, सब कोई तुहाडा, गल करो बस। आओ जी ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਈ ਹੈ ਲੈ ਗਈ। कहता है 4-5 बंदे सिर्फ बैठे होते हो आप भाई, तेनू कितने बंदे चाहिए? नहीं बंदे बंदियां दा रौला नहीं, ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਚ ਪਿੱਛੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਮੁਰੱਬੀ ਸੀ, ਨਿਕਲ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਖਰਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਲਿੱਤਰ ਖਾਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬੜੀ ਹੈ ਜ਼ਕਰੀਆ ਮੁਰੱਬੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਨਿਕਲ ਤੂੰ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਵੇਨੇ ਆ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ ਜਨਾਬ। अच्छा मैं कल गया हूँ ना, मी हरान साहब, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी उस्ताद मोहतरम मुझे मुखातिब कर रहे हैं जी। पता नहीं है कि मी हराम साहब आए हैं। नहीं मैं तो मियां अजीम हूँ। नहीं वो फिर अच्छा उस्ताद मोहतरम मेरा एक छोटा सा सवाल था। एक मिनट, यूट्यूब पे बाबर मेहर साहब आए हैं। बोल दे नहीं भाई। हेलो हेलो बाबर महर साहब आवाज आ रही है जी? वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ਅਸਲ 'ਚ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पर टिकटॉक के ऊपर कोई बात कर रहे थे, कौन कर रहे थे? जी 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 उस्ताद मोहतरम मैं था। अच्छा एक छोटा सा सवाल था मेरा, वो मैंने आपसे पूछा ना। अच्छा उस्ताद मोहतरम जो खत्मे नबूवत के हवाले से कुरान पाक में सूरह अहज़ाब में आयत है, उसको अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड करें तो पहले हिस्से में फरमाया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, ठीक है। तो इसकी जो एक मुझे जो समझ आती है ना, अगर मैं यहाँ पे गलत हूँ तो मेरी इस्लाह कीजिएगा, कि जितने भी अल्लाह पाक के जलीलुल कदर पैगंबर और नबी थे ना, अल्लाह पाक ने उनके बेटों को भी नबी बनाया, तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मर्द के बाप नहीं। तो क्या ये मौक़िफ़? नहीं वो तो चलो आपकी एक समझ सोच है। वो असल में ये था कि अरबों के अंदर रिवाज था कि जो ले पालक बच्चा होता है, मुतनब्बा जिसको लिया गया होता है, किसी का बच्चा लेके पालती हैं, तो हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु थे, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे। अब ये मुशरिकों के अंदर ये रिवाज था कि वो ना जो ले के बच्चा पाला होता था ना, उसको विरासत के अंदर भी हक देते थे, और उसकी बीवी जो होती थी वो इस बाप के ऊपर, यानी जो फर्जी बाप होता था उसके ऊपर हराम समझते थे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो शरीयत इस्लामिया ने उस एक मुशरिकीन के एक बहुत बड़े अकीदे की नफी करने के लिए ये इरशाद फरमाया। ठीक है जी जी ठीक हो गया उस्ताद मोहतरम, बस एक छोटी सी कंफ्यूजन थी तो मैंने सोचा आपसे ये सवाल करूंगा जी, बेहतर हो गया।
हाँ, ये सिकंदर मिर्जा कह रहे हैं कि सगे बेटे के हकूक देते थे, मुंह बोले बेटे को। बिल्कुल ये कीदा था। मलक मौजूद है। मलक, क्या हाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ठीक ठाक मुफ्ती साहब, अल्लाह दा शुक्र। ते मैं बकायदा तौर दे उत्ते मैं सुन रहा, मैं ते हाजिर होया था मुनाजरा सुनन वास्ते। ते बाकी प्रोग्राम तो बढ़ गया। प्रोग्राम बढ़ गया। अच्छा, कादियानियों से जब बात होगी ना, पता क्या कहते हैं, ले ਇਹਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ देर पहले का जवाब दे छड़े हैं। भाई यार, कभी नहीं हुआ कि कभी इन्होंने किसी मौजू पे बात की हो, तो जब बात होगी कहेंगे ये तो हमने जवाब दे दिया हुआ है, हमारे बड़ों ने जवाब दे दिया हुआ है। वो केड़ा जवाब दिता तुसा? हाँ जी, कभी नहीं इन्होंने मिर्जे कादियानी की जात किरदार के ऊपर गुफ्तगू की, कभी इन्होंने मिर्जे कादियानी के चलो दावाजात के ऊपर बात कर लो, नहीं करते ही नहीं है। आगे से कहते कुरान दी से बात, आओ जी कुरान दी से करो, जो तुम्हारी दुनिया की हर शर्त हमें कबूल है, आओ करो, बात करो बस। अब ये वो कादियानी आया है, अमजद दोबारा आ गए। हाँ जी कादियानी साहब। मुफ्ती साहब ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੋਂ ਮਗਰਿਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਰੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਗਰਿਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਗਰਿਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ भी करनी होती है। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਗਰਿਬ का टाइम ਹੁੰਦਾ पिया है। अच्छा, वो तो ठीक है, चलो फिर नमाज पढ़ के आ जाओ, कोई मसला नहीं। कितनी देर तक आ रहे हो? मैं वापस आता हूँ, अभी 6:40 हुए हैं, तो मैं आता हूँ 7 बजे तक आता हूँ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। अच्छा, 20 मिनट बाद जाओ, फिर नस जाओ, जल्दी आया जी। 20 मिनट बाद आ जाओ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਾਓ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਲੋ ਭਾਈ, ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਨੇ 10:40, यानी 11 बजे बंदा आएगा। 6:40 ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ। हाँ ठीक है, कोई गल नहीं, ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। 100 ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਚਲੋ 20 ਮਿੰਟ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ नहीं। अच्छा मुफ्ती साहब, वैसे क्या मुमासलत है ये छोटे और बड़े मिर्जे की कि छोटे मिर्जा भी एंजी करते हैं, उनको सवाल देने ना, वो कहते जी वो मैं पिछली वीडियो में रिकॉर्ड कराता होया, उसे जाके देखो और फलाना मसला जी, मैं उस मसले में मैंने बता दिया हुआ, बड़ी रिसर्च से बात की है। ये बड़े मिर्जे वाले भी देखें, ये उसी से सीखा है ना इसने भी। वो कहते हैं जी वो तो पहले ही जवाब देता है, पहले ही पता नहीं केड़ा जवाब दे छड़े। अच्छा जी, एक दफ़ा याद है आपको जब इसकी एक वीडियो का हमने ऑपरेशन किया था जिसमें इसने कहा कि वो कादियानियों को दावत इस्लाह, आपको याद होगा उस वीडियो का आपने पूरा पोस्टमार्टम किया था, याद होगा आपको। तो उसके अंदर तमाम की तमाम बातें जो थी वो मुसलमानों के खिलाफ की हुई थी, एक बात भी ऐसी नहीं थी कि जिसके अंदर कादियानियों को दावत इस्लाह दी गई हो, वो पूरी वीडियो के अंदर। और हर वीडियो के अंदर कहता जी मेरी वो वीडियो आप देख लें, मेरी वो वीडियो आप देख लें। ठीक है, ये तो पुरानी बात भाई बता रहे हैं ना। अच्छा उस्ताद, बात करनी थी कल ना, कल ब्रॉड में कर रहा था तो कादियानियों की तरफ से ऐसे सवालात, वो कमेंट्स आते हैं तो वो कहते हैं नहीं तुम फिरका हो, तो फिरके की तारीफ़ यानी कि जो कि अलग हो गया इस्लाम की असल से, वो अलहदा हो गया, जमी मुसलमानों के अकायद से वो अलग हो गया, तो उसको फ़िरका कहते हैं। तो ये बता रहा था मौक़िफ़ के अहले हदीस देवबंदी मकातबा फ़िक्र ये फ़िरका नहीं है। कहते हैं जी आप आला हज़रत ने फ़तवे लगाए, हमने कहा बिल्कुल लगाए हैं फ़तवे। अब उनके नज़दीक शातमियत हुई, उन्होंने फतावा जात लगाए, और अब भी आप किसी से पूछें कि भाई ये जो अकीदा है क्या आप मानते हो, तो वो कहेंगे नहीं मानते। तो कुछ अकायद
जिनके ऊपर आला हज़रत ने गिरफ्त की वो बताए गए। कल ना लाइव ब्रॉड पे मैं बता रहा था, उनमें से 3-4 बताए। जैसे कि मैंने बताया कि नबी अलैहिस्सलाम का ख़याल आ जाना ये बदतर है, जबकि बैल और गधे का ख्याल नमाज में आ जाए वो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह फिर आला हज़रत ने इसके ऊपर गिरफ्त फरमाई कि ये जो बात करनी कि 1400 साल में से किसी ने ऐसी बात नहीं की कि बैल और गधे का ख्याल बिल्कुल बेहतर है नबी अलैहिस्सलाम के ख्याल आ जाने से। तो फिर कल ये हुआ कि जबकि हम कादियानियों को ये जवाब देते हैं, जैसे आज हमने जवाब दिया कि वो मिर्ज़ा कादियानी वाबी था, तो कुछ बंदों ने उनमें वो डिंग डोंग भी और दूसरों ने आज की है ब्राड और उसके ऊपर वो गालियां दे रहे थे और मुझे भी आपको भी। तो इस तरह की उन्होंने हरकतें की हैं। तो मैं तो कहता हूं कि वो अगर इस तरह मतलब कि अब कहते हैं ना वो तोपें उधर चलानी है तो मैं तो तैयार हूँ तोप चलाने के लिए, मेरे साथ कर ले जिसने ये कोई बात करनी है। अगर किसी की हिम्मत है तो वो आ जाए लाइव मुझसे बात कर ले। तो ये है कि हम चाहते नहीं हैं ये करना। जी नकीब भाई बहुत शुक्रिया। तो आपने चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और आते रहना है, जब भी हम लाइव करें तो आपने तशरीफ लाना करना है। जी जरूर। आपका बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। जी तो उनकी मुझे कॉल भी आई है उस्ताद मोहतरम, तो वो कह रहे थे कि मुफ्ती साहब ने भी ये बात कर दी है कि हाँ जी भाई चैलेंज यानी कि अगर डिबेट करनी है तो कर लें। तो कहते हैं जी वो आपकी तरफ से भी बात हुई, तो उन्होंने बिल्कुल इल्मी गुफ्तगू करने की बजाय बात यह है कि नहीं, हमने उस चीज का दरवाजा नहीं खोलना। अपने अपने प्लेटफॉर्म पे जो कुछ मर्जी करें, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। हमने भाई हम पहले भी तनहा थे, अकेले ही काम कर रहे थे नुक्कड़ में बैठ के, तो हम अब भी अकेले ही हैं। तो हम एक हमारा मौजू है, उस मौजू पे रह के हम बात करते हैं। तो हमें भाई इस तरह के कोई किसी पंगे पुंगे में पड़ना ही नहीं है। तो जो मर्जी जिसने जो करना है करे कराए, गाला कड्डो, इधर करो उधर करो। ते वो कहते हैं ना बदनाम होंगे क्या नाम भी ना होगा। तो तुसी साडी बदनामी करदे हो पे ते ओहदे नाल साडा नाम हो जाएगा। चलो सुभान अल्लाह, ते ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖੋ ਭਾਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਖੈਰ ਸੱਲਾ। जी ठीक हो गया उस्ताद मोहतरम। नहीं अपना ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ टिकटॉक ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਹੀ नहीं है। यूट्यूब का जो माहौल था वो बिल्कुल अलग था, टिकटॉक का माहौल सिरे से ही अलग है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक गाली गलोच मिलेगी। यहाँ पे आपको उन्हें इंज किया इत्थे तुसी अपने कमों रह जाना जे। मैं तुहानू दस दियां ते जेड़ा खत्मे नबूवत दा थोड़ा बहुत काम करदे हो ना पे, ध्यान ना करी जाओ, नहीं तो तुसी इहदे तो भी जांदे रहना जे। तुहानू मैं दस दियां किसे चक्कर च पैना ही नहीं। साडे लो भावें साडे उत्थे नंगे होके नचो, सानू नहीं पता। हाँ अपने मौजू नूं असीं छड्डना कोई नहीं जी। हाँ अपनी असीं गल करके रखनी है बस। अल्लाह दे खैर सल्ला जी। इंजीनियर साहब कुछ कह रहे हैं। सर मैं अर्ज करना था सी भाई जेड़े सॉरी मैं ये बात कर रहा हूं। काशफा तू इधर संभाल नहीं जरा, फिर मैं आ गया। जी करो गुफ्तगू भाई। उस्मान पर आपकी बात 100% दुरुस्त है कि लोग आते हैं किसी ना और लहर में, क्योंकि टिकटॉक है ना शॉर्ट वीडियोस का प्लेटफॉर्म है और इस पे हर तरह की इल बला जो है वो लोग 1 मिनट के अंदर अंदर करके आपको तमाशा दिखाते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर लोग तो वो ना हाथ चलाने के आदी हैं, तो कहते हैं भाई नवी तो नवी कोई जड़ा ना शैतानी यार डबल टैप करो यार दोस्तों, डबल टैप कर दियो भाई, मेहरबानी करो यार। नहीं तो नई चीज आंदी जाए जो देखते हैं कि जी इतने एक लाइव कोई सूरत हाल है, 1 2 4 5 मिनट बाद वो बोर हो जाएंगे, फिर अपनी जो वो अंदर की हवस है भड़ास है वो निकाल के
यार इंजीनियर यकीन जानो, जब से हम गए हैं ना टिकटॉक पे, रंडी रोने नहीं खत्म हो रहा। खुदा दी कसम, रुस्सा ना देना, नवी तो नवी गेम ही सामने आंदी है। पता नहीं है जी, असी तो कसम वाली गल है, मेंटल हो चले हैं यार इस चीज यार। ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਟਿਕਟੌਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਉਹ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਸੁਰ ਸੁਆਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸਰ, ਲੋਕ ਰੰਗੀਨੀ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੋਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਖਲੋਂਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਸਾਰਾ ਰੋਲਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਬਸ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਕਾਸ਼ਿਫ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਸਫ ਵਗੈਰਾ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਭਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਾਸ਼ਿਫ ਭਾਈ जी जी उस्ताद मोहतरम, आप वापस जरूर आइएगा। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, 40 ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, 50 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 10 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਹੋ गए ने। एक मिनट, आप वापस तशरीफ लाएंगे तो इस्लामुल्लाह भाई की जो है ना थोड़ी सी क्लास भी लेनी है आज ऑफ द रिकॉर्ड। तो आपकी तो चले नजर नहीं पड़ी, जब मेरी नजर पै गई सी उस्ताद जी। इस्लामुल्लाह भाई तैयारी पकड़े ना, माइक ना खोलें, माइक उस्ताद मोहतरम आएंगे तो खोलेंगे। अब आप माइक नहीं खोलना अभी। अच्छा जी, आसिफ भाई आप मौजूद हैं? जी काशिफ भाई मौजूद। अच्छा, तो किसी साथी ने बस वो 10 मिनट रह गए, 10 मिनट। ग्यारह बजे का क्या चक्कर है? अच्छा हाँ, अच्छा 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 11 बजे उसने आना। यार किसी साथी ने इसकी आवाज पहचानी है? मैंने इसकी आवाज पहचान ली, नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बड़ा जलील होके गया है और बहुत ही इंतहाई काशिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई, इसका नाम नुमान है। नुमान, वो याद है ना आपको, लंदन वाला यूके? नुमान जी। वो तो मिर्जा इंजीनियर तो नहीं बन गया था। आवाज जानी भला कौन सा नुमान? वो जो पहले मानता नहीं था, फिर मान गया था, फिर इसको हमने ब्लॉक किया था, फिर आ गया था, फिर ब्लॉक किया था, ये वो वाला बंदा है? यार इस बारे में तो मुझे इल्म नहीं है, पर ये वो है जो मानता नहीं है, ये वो है। एक कादियानी है ना? हाँ कादियानी नहीं है, मुल्हिद है। मुल्हिद है क्या? हाँ कादियानियों में से निकला हुआ मुल्हिद है ये। वो भी मुल्हिद भी, कादियानी भी मुल्हिद ही होंगे ने। हाँ जी। अच्छा इंजीनियर भाई, इंजीनियर भाई जिथे मैं बैठा हूं ना, मेरे बिल्कुल उत्ते एक फोटो तो नजर आ रही है जी जी। बंदे दी। इस टाइम तुसी जनाब देखो जरा कि ये बंदा इस टाइम इन्ना डर रहा है कि उस्ताद मोहतरम मैनू हुण कहणगे की इस्लामुल्लाह भाई अज नहीं छड्डांगा तानू। नहीं वैसे ना उन्होंने बखाने सी तीन। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं डिस्कस करना वो, पता है। अच्छा चलो ठीक है। आमिर अवान साहब है जी। इस्लामुल्लाह भाई नहीं, आवाज फिट हो जाती है। आप म्यूट माइक बिल्कुल न खोलें। आप माशाल्लाह माइक म्यूट से बहुत अच्छे लग रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, चिट्टी चिट्टी दाढ़ी वाला बाबा, माशाल्लाह। आमिर अवान भाई हैं? मिर्जा कादियानी के यार ये काशिफ भाई उधर कमेंट्स में डाले ना दोबारा ये इनवाइट लिंक स्ट्रीम यार्ड का, देखें कोई और आना चाहे तो। लिंक तो आ रहा है नीचे। मिट्ठू खान साहब आए जी, मिट्ठू खान साहब। मिट्ठू खान साहिब बाबा जी तुसी शरारतां कर रहे हो। और उस्मान अली साहब मौजूद हैं, कोई गल कर लो टिकटॉक ते भाई ने।
जी जी बात कर रहे हैं, मलक भाई बात करना चाह रहे थे कोई, और माइक फिर उधर से बातचीत शुरू होगी। मलक भाई आप कोई बात करना चाहते हैं? वो कादियानी उसका वेट कर रहे थे कि वो आए, उसकी बात सुने। नीचे कोई मिठू खान साहब हैं। मिठू साहब आप नीचे एक मैसेज की, आपको कॉल पे लेते हैं। मिठू खान साहब आप नीचे एक मैसेज यार पहले मैसेज करवाया करें फिर लिया करें कॉल पे। मिठू खान साहेब, मिठू खान अपना ही है। अस्सलाम वालेकुम जी, सबको अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी दे, नेकी वाली जिंदगी दे जी। आमीन आमीन। जी मिठू भाई आप क्या कहते हैं जनाब ये मिर्जा कादियानी के बारे में? बद खंजीर हैं ये, बद, उससे भी आगे बढ़ के। कादियानी कहते हैं वो हकमो अदल है हमारा। तौबा तौबा जी, ये बहुत, इसके बारे में आपको मलक साहब से ही बताएंगे जी। हम उसके माशाल्लाह उस्ताद जी की आपने तस्वीर भी लगाई है। मलक भाई मिर्जा कादियानी कहंदा मैं हकमो अदल है, ते वो हकमो अदल ना वो कोई हाकम बनया ना कोई उन्हें जनाब उन्हें केड़ी जगह ते हुकूमत की है। ਸਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀਰਤ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਸੀਰਤ ਮਹਿੰਦੀ ਚ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਕੋਲ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਹਕਮਤ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਲਤਨਤ ਸੀ। ਔਰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਰੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਹੈਗੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਰੂਹਾਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। नहीं वो कैसा हकमो अदल है कि ओदा मरीद कह रहा है कि जेड़ा अब्दुल करीम सियालकोटी है वो तो गैरतमंद है लेकिन मिर्जा कादियानी बगैरत है। ये कहदा हकमो अदल होया? वो हकमो अदल एक कादा हकमो अदल है? ओनू कह देने कि अपनी बुढ़ी नू पर्दा करा ला ते वो कहंदा जा नस जा, मैं इस पर्दे दा कायल नहीं हैगा। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹਕਮੋਦਲ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹਕਮੋਦਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਟੱਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋੜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵਟਵਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਗੁੜ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਟੱਟੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂੰਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਮਿਟਾਏ। ਕਿਹੜਾ ਹਕਮੋਦਲ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹਕਮੋਦਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤੇ ਵੀ ਖਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਕਮੋਦਲ ਹੈ। रूहानी गल्लां ने ना भाई, साडी समझ तो बाहर ने ते कोई अमजद आके दसेगा सानू। 4 मिनट रह गए ने। नहीं वो केड़ा हकमो अदल है जनाब? जुत्ती वो पा लेंदा सी ते आ एक जुत्ती लाती, एक जुत्ती पा के सो गया ते सुबह उठ के कहंदा जुत्ती लगदा मेरी कुत्ता ले गया। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹਕਮੋ ਅਦਲ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਲਤਨਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਦਿਨ ਤੱਕ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ? ਅੱਛਾ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਉਹ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਲਤਨਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੈਦਲ ਟੁਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਚੱਪਲ 1 ਮੀਲ ਪਿਛਾ ਰਹਿ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹਕਮੋ ਅਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਦੁਬਰ ਚ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹਕਮੋ ਅਦਲ ਹੋਇਆ ਬਈ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹਾਕਮ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿ ਉਹ ਥੱਲੜਾ ਬਟਨ ਉਤਲੇ ਕਾਚ ਤੇ ਉਤਲਾ ਥੱਲੜੇ ਕਾਚ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਹਕਮੋ ਅਦਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਂਗਲ ਚੜੀਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਠਰੀ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹਕਮੋ ਅਦਲ ਹੈ ਭਾਈ? ਐਡਾ ਡਰ ਗਿਆ ਉਂਗਲ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ मैं सामने नहीं लेनी, मैं लुक के लेनी। वो कौन सा हकम अदल है जो केले भी देता था? यार जरा इस गल ते रोशनी पाई उस्मान। उस्मान भाई नहीं मैं 4 किलो आदियां नच्छो बेगम ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, 4 ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨੱਛੋ ਬੇਗਮ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਕੱਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹਕਮੋ ਅਦਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕੀ ਲੋਂਡੀ ਹੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਉਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹਕਮੋ ਅਦਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਂਗਲਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ। ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹਕਮ ਅਦਲ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਬਈ। ਬਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਜ਼ੀ ਯਾਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਸਜਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਦੁਸਤੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ।
ਬਈ ਕਿਹੜਾ ਹਕਮੂ ਵਦਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਾੜ ਦੇ ਕੀੜਾ ਚੜ ਗਿਆ ਕੀੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੜਿਆ ਦਾੜ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਏ ਦਾੜ 'ਚ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਏ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ। ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਗਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਦਰਖਤ ਚੜਿਆ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀੜਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚੜਿਆ ਨਾ। ਬਈ ਕਿਹੜਾ ਹਕਮੂ ਅਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦਫਾ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਲਾਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਜੇ, ਮੈਂ ਹਕਮੂ ਅਦਲ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਰੋਕ ਜਲਾਸ਼ ਬਈ ਮੈਂ ਹਕਮੂ ਅਦਲ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਕੰਨ ਫੜ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ 100 ਦਫਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀਆਂ।